students, ready with your books? Okay then, lesson 4 हमारा कंप्लीट हो गया था. Word meanings and question answers were remaining. So I'm starting. Open page number 27 of your book Panorama. Page number 27 of your book Panorama. Word meanings. Ruthless means cruel, merciless. जो क्रूर है. Patch means a piece. Firmament means sky, आकाश. फिशर्स यानी कि क्रैक्स जो लैंड एरिया में पड़ जाते हैं सूखा पड़ने की वजह से. Unceasingly means constantly, continuously, without stopping. Sinus means binding, लपेटना. Crimson is deep red color. Indignation, anger. अपमान, गुस्सा. Import means यहाँ पर है import का मतलब मीनिंग. Flay, to take out the skin. चमड़ी उधेड़ना. Thresh means separate grain from corn. धान से छिलकों से धान को अलग करना. Cinders, कोयला या आधी जली हुई लकड़ी. Partly burnt wood or coal. Munch means chewing, चबाना. Callous, without feelings, जिसमें कोई भावना ना हो. निर्मोही जिसको बोलते हैं हम. Domain, kingdom. Wisp, a small bundle of grass, straw, etc. Biga means a measure of land. Brandish, to wave about. ऐसे ही घूमना. Gore, wound with horns, सींगों से नुकसान पहुंचाना. Rumble, to fall, गिर जाना. Pen is a place, a small enclosure for cattle, sheep, etc. मवेशियों को रखने की जगह. Hunched up, sat with a hunch, जो गाय और बैल वगैरह के पीछे जो होता है हंच. On the back. Chorus means singing or shouting in a group. Flinging means throwing, फेंकना. Unrelenting is severe. Mimicked, imitated, नकल उतारना. Overwhelmed, moved greatly यानी कि अंदर से बहुत भावुक हो जाना. Remorse, पछताना, regret. Chit of a girl, that means a very small girl. Impudence, rudeness, unpolite. Tiny means small. Tether means rope, वो रस्सी जिनसे गाय भैंसों को बांधा जाता है. Prostrate, lying flat यानी जमीन पर सीधे गिर जाना या लेट जाना. Forward, front, hind is back. Tanners means persons collecting animal skins, वो लोग जो चमड़ा बनाने का काम करते हैं. Leather, who makes leather. Shuddering, shaking. Incredulously, unbelievingly, जिस पर विश्वास नहीं हो. Stock still, motionless यानी कि बिल्कुल स्तब्ध रह जाना. Star spangled, studded with stars, वो आसमान जहां तारे चमक रहे हों. Who killed Mahesh? Now choose the correct alternative on page number 29. Who killed Mahesh? The food. Who was Amina?
Gafur's daughter. The story took place in June, May-June. Shibu is the name of the zamindar. Why did Gafur go to Fulbair at the end to work at the jute mill? Now the question answers. Short answers. Many a time, question number one, many a time the poor was forgiven by the landlord. Why? The poor was forgiven by the landlord as he was poor and he always begged forgiveness to him. यानी कि वो हमेशा छोटा बन करके वहां गया था और जब भी वो माफी मांग लेता था तो उसको माफ कर दिया जाता था. Describe the two times when Gafur lost self-control. Once when he returned home after searching for the work but in vain, or he was hungry, thirsty and tired, and he was weak also as he had just recovered from the illness, and when there was no food and no water in his home, he lost his control for the first time and slapped his daughter. Next time when the messenger of the landlord came to call him and he was calling him by ugly names, this time Gafur lost self-control for the second time. What is penance? Why did Gafur think of doing it? Penance is an act which is to be done to repent on something wrong which is done. कुछ जो भी गलत हो जाता है उसका पश्चाताप करना, उसका जुर्माना या हर्जाना भरना, that is called penance. Why did Gafur think of doing it? Because he loved Mahesh very much and unfortunately by mistake Mahesh was killed by him, so he wanted to pay the penance. What kind of life did poor Amina lead right from her childhood? Amina lived in a very poor condition right from her childhood because she was a motherless girl. She lost her mother in a very early age and she used to do all the household work, cooking, cleaning, everything, and she used to fetch water and all necessary things for the house. Why was there so much scarcity of water in the village? Because there was drought from 2 years. 2 साल से वहां सूखा पड़ रहा था, इसलिए वहां बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं था. Why did Gafur lose his temper and kill Mahesh? जब घर में पानी नहीं था and अमीना पानी भर करके लाई और महेश ने उसको गिरा दिया और ऑलरेडी जो गफूर है वो बहुत ज्यादा परेशान था. He was hungry, thirsty, tired, and secondly he was beaten by the landlord. वहां उसको टॉर्चर किया गया था तो हर तरह की चीज उसके मन में इकट्ठा थी. दैट इज वाई जब गफूर ने सॉरी महेश ने वो पानी गिरा दिया तो गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किल्ड महेश. Write a character sketch of Tarak Ratna. Tarak Ratna was a very clever man. वो दिखाता कुछ और था और था कुछ और. जब वो वहां आता है तो वो he pretended कि उसको महेश पर बहुत ज्यादा दया आ रही है एंड he says कि ये भूखा प्यासा है, इसको धूप में बांधा हुआ है. लेकिन जब खुद की बारी आती है कि एटलीस्ट he should give something for Mahesh to eat,
तो वो ऐसा नहीं कर पाता। एंड जमींदार के यहाँ पर भी वो अपना प्रिटेंशन देता है, मतलब सब कुछ खुद के लिए हासिल करना चाहता है. सो ही वाज अ वेरी सेल्फिश मैन हु वाज हैविंग डबल कैरेक्टर्स. Then answer in detail. Giving examples from the story, comment on the relationship between Shibu and Gafoor. शिबू was a landlord जिसको बहुत प्राउड था, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था. He was very cruel and ruthless person, जिसको गांव वालों से कोई हमदर्दी, कोई सिंपैथी नहीं थी. और इवन उस कंडीशन में जब गांव में पानी नहीं है पीने को, तो भी उसके टैंक से पानी वो किसको नहीं लेने देता था. और गफूर को रेंट के तौर पर उसने उसका हिस्सा भी रख लिया था स्ट्रॉ का, बिना ये सोचे कि व्हाट विल हैपन, हाउ विल दे सर्वाइव, गफूर एंड महेश एंड अमीना. So he was a very greedy, selfish man, rude man and cruel. और गफूर जो है वो ही इज अ सिंपल मैन, पुअर मैन who is living in a very poor condition, but he has his self respect. स्वाभिमानी भी है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो रखना चाहता है. और इज अ वेरी काइंड पर्सन ऑल्सो, क्योंकि महेश पर उसको बहुत दया आती है. कैसे भी करके वो उसको फीड करना चाहता है, उसको सही कंडीशन में रखना चाहता है. देन नंबर 2, और रिलेशनशिप की जहां तक हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो शिबू एंड गफूर, जब तक गफूर छोटा बन करके उसको सुपीरियर मान करके उससे उसके सामने जाता है तो इट्स ऑल राइट. लेकिन अगर जरा सा भी वो अपने हक के लिए एक आवाज उठाता है तो ही बीटन एंड टॉर्चर्ड. ड्रॉ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द इंडियन समर. तो जैसा भी गर्मियों में होता है, जितना थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी सूख जाता है, और देयर आर क्रैक्स इन द लैंड, एवरीथिंग सीम्स बर्न्ड. पत्ते, पेड़ों के पत्ते, घास वगैरह सब सूख करके पीली पड़ जाती है, जैसे कि जल गई है या झुलस गई है धूप में. और लैंड एरिया में क्रैक्स पड़ जाते हैं. देयर इज नो वाटर, नो वेजिटेशन टू बी सीन anywhere. Number 3, describe the attitude of Shibu Babu towards the villagers. शिबू बाबू हैज नो कंसर्न विद द विलेजर्स. वो सिर्फ उनको अपना गुलाम बना करके रखना चाहता है, उनसे काम लेना चाहता है. बट ही इज लीस्ट वरीड अबाउट देयर ग्रीवेंसेस एंड देयर प्रॉब्लम्स. उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या मुश्किलें हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है. ही इज वेरी क्रूअल टुवर्ड्स देम एंड ही कैन डू any kind of behavior to them. Then character sketch of Gafoor, तो already आप लोग कर सकते हैं इसको. Then true and false. Gafoor tilled 8 bighas of land for the landlord. False. He tilled 4 bighas. Number 2, it was Zamindar's elder son's birthday. False. It was his younger son's birthday. Amina informed Gafoor that Mahesh was at Daryapur. True. Gafoor left the brass plate behind as a payment for penance. True. All the 3 tanks in the village had dried up. False. One tank contained water, but that belonged to the Zamindar. Okay, so do the question answers of this lesson. And now we'll start lesson number 5. Love across the salt desert. It is written by Keki and Daruwala. Keki and Daruwala is a well-known Indian short story writer and poet. And he began his career as a government servant
and also was a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980. His writings reflect sensitivity to human beings. He has authored several books and is a recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है. एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ सिंपल स्टोरी जो रैन ऑफ कच्छ, यानी कि जो बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां की ये स्टोरी है. Ritika, I told you activity 1, 2 and 3. तुम्हें मैसेज भी भेजा था मैंने. Activity 1, 2 and 3. Is it clear? Is it clear now? You have to do activity 1, 2 and 3 in lesson 12. And now we are reading lesson number 5 of Panorama. So, the drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Kutch, जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर 3 साल से सूखा पड़ रहा था. Even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country. The monsoons had, so to speak, forgotten the land. The ran lay like a paralyzed monster, its back covered with scab and scar tissue and dried blister skin. और अगर बादल वहां नजर भी आते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे इस जगह को इग्नोर करके वो निकल जाते हैं. मॉनसून जैसे यहाँ का रास्ता ही भूल गए हैं. The ran lay like a paralyzed monster. So he is just using a metaphor. Author is writing. तो रैन को वो एक पैरालाइज मॉन्स्टर, जैसे कि बहुत विशाल जो दैत्य है वो पैरालाइज हो गया है और वो उसके ऊपर पूरे छाले पड़ चुके हैं, झुर्रियां पड़ चुकी हैं. तो इन द सेम वे जो वहां का लैंड एरिया था वो बिल्कुल सूख करके उसमें क्रैक्स पड़ गए थे. ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी और सूखे की वजह से ब्लिस्टर यानी फफोले, छाले पड़ गए हैं. The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln and then embedded in the soil crust. और अर्थ में इस तरह से क्रैक्स पड़ गए थे, छोटे छोटे पैचेस वहां बन जाते हैं जब बिल्कुल सूखा होता है. तो ऐसा लग रहा था जैसे एक एक हिस्से को किलन में बेक करके, यानी कि गरम करके, सेक करके वापस से वहां पर लगा दिया गया है. The cattle became thin and emaciated. मवेशी, जो जितने भी कैटल थे, उनको ना खाना मिलता था ना पानी, तो they also had become thin and emaciated. That means weak. Then one day the clouds the oxen died. The camel alone survived comfortably, feeding on the bawal camel thorn. बैल भी मर गए थे, ओनली कैमल था जो सरवाइव कर रहा था वहां पर, क्योंकि वो कांटेदार जो झाड़ी होती है बावल, उसको वो खाता है. Then and camel can survive
without water for many days. Then one day the clouds rolled in like wineskins, and the lightning crackled and the wineskins burst. तो एक दिन लेकिन वहां पर बहुत बादल छा गए और एकदम से वो बर्स्ट हो गए, बिजलियां चमकने लगी और बारिश हो गई. Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came. और 3 साल का जो सूखा था वो फिनिश हो गया था और अभी भी लोग याद करते हैं इस घटना को. 2 साल और बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को याद है कि 3 साल के बाद पहली बार बारिश उस दिन हुई थी जिस दिन फातिमा ने इस गांव में अपना कदम रखा था. और कैसे वो यहाँ आई वो हम बाकी के चैप्टर में पढ़ेंगे. What would he not do for her, the daughter of the spice seller, she who smelled of cloves and cinnamon, whose laughter had the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of the night, and whose hair was the night itself. For her, he would cross the salt desert. Here, the author is describing this beautiful girl Fatima, जो कि एक स्पाइस सेलर यानी मसाले बेचने वाले की बेटी थी और उसके कपड़ों में से क्लोव्स और सिनेमन, क्योंकि वहीं पर वो रहती थी, तो क्लोव्स यानी लौंग और सिनेमन यानी दालचीनी. ये मसाले होते हैं. लौंग और दालचीनी की खुशबू उसके अंदर से आती रहती थी. उसकी हंसी किसी मंदिर की घंटियों की तरह थी. whose eyebrows were like black wisps of night and whose hair was the night itself. उसकी आईब्रोज भी बहुत सुंदर थी और उसके बाल घने काले लंबे थे. एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. और उसके लिए वो ये सॉल्ट डेजर्ट भी क्रॉस कर सकता था. He had stayed the day at Kala Dungar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. He had set his camel Allah Rakha free to crop on the bawal tree. Now this is the story of a young man Najab who crossed the salt desert to meet Fatima. Fatima was living in Pakistan, whereas Najab was from India. और पूरा सॉल्ट डेजर्ट क्रॉस करके वो फातिमा को लेने वहां गया. And how he went, what problems he faced, this we will study in this, read in this lesson. तो पहली बार जिस दिन वो रवाना हुआ वो काला डूंगर पहुंचा, जो कि एक काली पहाड़ी है. कैप्ड विद बसाल्ट, बसाल्ट मिनरल्स वहां पर पाया जाता है और कच्छ में यही सबसे ऊंची जगह है. उस डेजर्ट एरिया में ये काली पहाड़ी ही सबसे ऊंची जगह है. और वहां पर उसने अपने कैमल को फ्री छोड़ा ताकि वो बावल ट्रीज यानी अपनी फीडिंग कर सके बावल ट्रीज से. एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पचमई पीर ऑन द हिल टॉप. वहां पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ था, पचमई पीर का स्थान था वो. वहां पर पचमई पीर के फुटप्रिंट्स थे. And he left some food there and started feeding on his thali according to the custom here. In a few minutes, jackals materialized and gobbled up the food. This was auspicious. If they had not turned up, he would have considered the ill effects of the omen serious enough to have cancelled the journey. और वहां पर ये मान्यता है, ये रिवाज है कि जो भी वहां जाता है वो वहां थोड़ा खाना रख करके थाली में जाता है. अगर जेकॉल्स आकर के उस खाने को खा लेते हैं तो ये शुभ शगुन माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है. और अगर वो नहीं आते हैं तो इसको बुरा शगुन मान करके जो यात्रा है आगे की उसको कैंसिल कर दिया जाता है. तो Najab also did the same thing. He kept the food there and started beating on his थाली. लेकिन जेकॉल्स ने आकर के
गॉबल्ड अप यानी जल्दी जल्दी निकलना। तो जैकॉल्स ने आकर के उस खाने को खा लिया और ये एक शुभ शगुन था। A lamp was lighted in the Peer's honor every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from Khavda. Khavda is a small village on the border. बॉर्डर के पास हावड़ा एक छोटा सा गांव है जहां से नजब बिलोंग करता था, जहां का रहने वाला था नजब। तो पचमई पीर का जो स्थान था वो ऊंची पहाड़ी पर था। वहां पर एक दीपक हर रात को जलाया जाता था जो कि खावदा से भी दिखाई देता था। Over 100 years earlier, the Pachmai Peer had crushed these salt waves, serving the people accompanied as legend had it by a jackal. तो कई सौ साल पहले, ओवर 100 years earlier यानी कि 100 साल, करीबन 100 साल पहले पचमई पीर एक संत थे जो यहाँ घूमते रहते थे इन सॉल्ट वेस्ट में और लोगों की सेवा करते रहते थे, और हमेशा उनके साथ उनके साथी होते थे जेकॉल। रिक्लूसिव बाय हैबिट, तो क्योंकि वो एकांतवास पसंद करते थे इसलिए वो जंगलों में ही रहते थे जहाँ उनके साथी होते थे सिर्फ ये जो जेकॉल्स हैं, और वहां उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, उनका ध्यान भंग करने वाला कोई नहीं होता था। दैट इज व्हाई ही प्रेफर्ड टू लिव इन जंगल्स। और जेकॉल क्योंकि उनके साथी थे इसलिए ये रिवाज बन गया ऑफ फीडिंग द जेकॉल्स। जेकॉल्स को फीड करने का रिवाज तभी से चला आ रहा है। Najab bowed before the flame and set out. He left behind the camel thorn shrubs and the area once famous for its savannas of stunted grass, but now sere and brown as desert. और नजब ने वहां प्रणाम किया सर झुका करके और वहां से चल दिया। अब जो बावल श्रब्स थी यानी कि जितनी भी कांटेदार झाड़ियां वगैरह सबकी वेजिटेशन थी वो सब पीछे छूटती जा रही थी। तभी ये एरिया बहुत हरा भरा होता था, यहाँ सवाना ग्रासलैंड था। सवाना इज द नेम ऑफ द ग्रासलैंड, और यहाँ पर कभी ऊंची ऊंची घास जिसमें होती है तो वहां पर ये ग्रासलैंड था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ डेजर्ट बचा है विच इज डिवॉइड ऑफ ऑल द वेजिटेशन, यानी कि जहाँ पर किसी भी तरह की वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट सम थॉर्नी shrubs and bushes. He had left behind all human habitation, Quran being the last village for the next 3 days. He would not be seeing any bungas, those one-room mud houses circular at the base, but tapering into conical thatch roofs at the top. Now only the sandscape stretched out before him mile upon mile. और चलते चलते अब सारा ह्यूमन हैबिटेशन यानी कि जहाँ भी जो भी छोटे मोटे गांव वगैरह थे वो सब पीछे छूट गए थे। नजब उनको क्रॉस करके आगे निकल चुका था। कुरान जो लास्ट विलेज था वो भी अब पीछे छूट चुका था, और अगले 3 दिन तक उसको कुछ भी ह्यूमन वेजिटेशन या उनके घर भुंगास जो सिंगल मड हाउसेस होते हैं राउंड शेप में मड के बनाए जाते हैं और उन पर कोनिकल हैच रूफ होती है घास की, तो वो सब अब पीछे छूट गया था और अब आगे कहीं भी उसको 3 दिन तक ये सब दिखाई नहीं देगा। अब सिर्फ सैंडस्केप्स बचे हैं, यानी कि सिर्फ रेत ही रेत है जहां भी वो देखता है, यानी कि अब पूरा डेजर्ट एरिया है जिसको उसे क्रॉस करना है। और छागल्स होते हैं एक मोटे कैनवस जैसे कपड़े की बनी हुई होती है मशक या छागल जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी भरा होता है जो ठंडा रहता है, हवाएं लगती हैं जब भी उस पर। With the name of पीर on his lips, नजब हुसैन set forth. और पीर का नाम लेकर के, पीर का आशीर्वाद लेकर के नजब हुसैन आगे चल दिया।
Najab's diffidence was notorious among his friends. Diffidence यानी जो उसकी इमेज थी, was shy and not confident of abilities. He was known to have blushed at the mere mention of a girl, a strangely introverted lad with dreamy eyes. No one had ever associated him with any act of bravado. Najab was a very shy boy, बहुत शर्मीला था, इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने में ही खोया रहता है, जो ज्यादा बात नहीं करता है, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। तो वो किसी लड़की के मेंशन पर ही जो घबरा जाता था, शर्मा जाता था। ही वॉज अ वेरी शाय बॉय एंड विद ड्रीमी आईज, यानी उसके आंखों में सपने थे, बट ही यूज्ड टू स्पीक वेरी लिटिल। जल्दी ही अपने मन की बात किसी को वो नहीं बताता था, और अभी तक कोई भी ऐसा काम उसने नहीं किया था जिसको ये माना जाए कि वो एक करेजियस वर्क है या ब्रेव वर्क ही हैज डन, एनी heroic deed he has done. His father Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. और उसके फादर का नाम था आफ्ताब, तो वो अक्सर उसके बारे में कहा करते थे कि जितना भी मैंने और मेरे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स यानी जो उनके पूर्वज हैं, तो जितना भी हम लोगों ने मिलकर कमाया है इन 100 सालों में, ये लड़का, दिस लैड मीन्स दिस बॉय, विल स्पेंडर अवे, ये सब कुछ उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। बिकॉज इसलिए नहीं कि ये स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है, वो बात नहीं है। ही इज नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट, बट ये इतना शर्मीला है कि ये जो कुछ बेचेगा उसके लिए ये पैसे भी मांगने में इसको शर्म आएगी। सो दैट इज वाई he'll squander away everything. Now he had crossed the Rhine on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. But each time he had either accompanied his father or that silly old smuggler Jaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh. इससे पहले भी उसने इस रैन को, इस डेजर्ट को क्रॉस किया था 4 बार, लेकिन हर बार अपने फादर या फिर अपने अंकल, जो एक स्मगलर है जमन, और उसकी सारी सेटिंग है, साठ गांठ है, जो भी यहाँ रेंजर्स और केयर टेकर्स होते हैं, तो अक्सर वो इलीगल ढंग से यानी अवैध ढंग से बॉर्डर को क्रॉस करके सिंध जाता है, पाकिस्तान जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके, और स्मगलिंग करता है। और जबकि नजब जो है, ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। पिछले महीने ही वो उसने अपने 20 साल कंप्लीट किए थे। Each time they had taken Tendu leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200. But between the payoff to officials and to the intermediaries who arranged the sale of BD leaf to the man who took the camel out to graze and to the friend or relative who harbored them, there was precious little left. और वो लोग स्मगलिंग करते थे तेंदू लीफ की। तेंदू का पत्ता होता है जिससे बीड़ियां बनाई जाती हैं, बीड़ीज, और इसकी स्मगलिंग वो लोग करते थे, यानी कि यहाँ से 500 का खरीद करके बॉर्डर क्रॉस करके वहां 1200 का वो बेचते थे। एक्चुअली उनको 700 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट बीच में जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत देनी होती है। इंटरमीडियरीज यानी जो दलाल हैं, जो बीड़ी की सेल, ये की सेल को अरेंज करते हैं, और कैमल को चराने के लिए जो आदमी ले जाता है उसको
उसके अलावा जिस भी फ्रेंड या रिलेटिव के घर उन लोगों को रुकना होता है उनको सबको देना पड़ता है पैसा। और ये सब करने के बाद बहुत थोड़ा सा पैसा उनके पास बचता था। It was just enough to buy some used Terilin garments and then it was time to make the long trek back across the desert. फिर वहां से उस पैसे से वो टेरिलिन गारमेंट्स, टेरिलिन इज द टाइप ऑफ अ क्लॉथ, तो वो कपड़े लेकर के आते थे वहां से और उसको यहाँ बेचते थे। It was during one of these trips that they had stayed with Kalesha, the clove seller. He is a distant relative of your mother, his father had told Nazab. Kalesha was tall and well-fleshed, and his thick-jowled face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. और ऐसी ही एक ट्रिप पर वो लोग काले शाह के घर रुके थे, जो कि क्लोव सेलर यानी लौंग बेचने वाला व्यापारी था। और फादर ने बताया था कि वो नजब की मदर का कहीं दूर का रिश्तेदार था। He was a strong man, tall and strong man, और चेहरे से ही वो एक थोड़ा गुंडे टाइप का आदमी लगता था। Who is indulged in some illegal activities, जो अवैध काम करता है। और he always wore a tehmad, black and white check. Within a day, Najab discovered that the fellow was an absolute dog who drove such a cussed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenity. और अक्सर वो ब्लैक और व्हाइट चेक्स वाला तहमद जो लुंगी टाइप से होता है वो पहनता था। एंड ही वॉज नॉट अ गुड मैन। तो उससे पहली बार मिलने पर ही जो नजब के फादर थे उनको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। एंड हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम। We'll continue it in the next class. Till then, goodbye. Do the question answers of lesson 4 and read lesson 5. This is your homework. Okay, bye.